Yeah, I'll just share my screen. या सो कल हमने बेसिकली गूगल क्लाउड की बेसिक सर्विसेज के बारे में पढ़ा था और उसके साथ हमने जो हमें फर्स्ट लैब कंप्लीट करने को दिया गया था विच वाज थ्रू एन एक्सेस कोड वो भी किया था। काफ़ी बच्चों के कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर किए थे। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन which can be done through Google Cloud. Okay, so we are starting with today's topic, okay, which is introduction to digital transformation with Google Cloud. So कल हमने ये पढ़ा था कि how businesses are opting the cloud technology to bring transformation in their businesses. Because earlier what used to have was uh, first of all, whenever there was an organization which was ready to start their businesses, they have to first invest in their resources, which were basically the servers and the data centers. So most of their funds was going into that, and because of that they were not able to focus on their business logic. So this was a hurdle in their business. But with the cloud technology we are seeing a digital transformation in these organizations. So we will have a look what this actually means. So yeah. So, what is a digital transformation? When an organization takes advantages of new technologies such as the cloud to redesign and redefine relationship with their customers, employees, and partners. So, what does that even mean? So, suppose there's an organization which is currently working at a particular office with their on premise systems and their own data centers. But now they want to level up their businesses because paying rents and managing those servers is very difficult task as well. They require much expenses. So now what they can do is they can opt for cloud technology. Now what happens with cloud? They are paying to the cloud providers for what resources they are using. So here this transformation is which is termed as a digital transformation because organizations are using the technology provided by Google Cloud to redesign their business, to redefine their business, as well as to also bring some innovation into their organization. Because, see, just shifting their business to the Google Cloud will not bring any sort of change in their working style. See, just shifting your whole culture to another platform will not affect anyway. So you have to bring some innovation, and this can be done by using particular services which are provided by Google. For example, if I have a lot of data in my organization, now I have to think what I can do from that data to bring some useful insights out of it. So this is called innovation, and this is done by using the technologies and services that are provided by Google. So this whole process is termed as digital transformation. Okay. Now, yeah, there is a term which is called as burning platform effect. So, what is this burning platform effect? So, look, whenever company switches from their on-premises system, now what is on-premise system? Uh, they are working in their own offices in a particular place with their own resources. So these are all the things which compromises the on-premise system. Now, when a company makes a switch from their on-premise to a technology to go online with their businesses, this shift, this shift from their on-premise to going with the cloud technology, this is termed as a burning platform effect. Okay, the paradigm shift is termed as a burning platform effect here, and it is a part of the digital transformation. Okay.
So, talking about some example which these industries taking on. For example, suppose earlier what uh, we used to have cassettes. Sorry. Okay. So earlier we used to have the movie cassettes. Okay, we used to maybe a decade or 2 decades ago, we used to see movies or audios on cassettes and CDs. But nowadays, what it is has taken away by the OTT platforms and the new streaming platforms. So this shift from the old system to the like the new systems is can be termed as the burning platform effect. Okay, yeah, this. So when we talk about modernization, uh, with the Google cloud technology, there are main two focus area where we talk. So first modernization take place with the infrastructure and second one is application. So we will see how Google Cloud helps in the industry to modernize their way of working, to modernize their culture, to modernize their businesses to grow even more faster. So the first modernization take place with the infrastructure. Now, how this happens? Let's take a look. See, how we are going to modernize our infrastructure. So when we talk about infrastructure modernization, uh, this process is basically replacing the hardware which we are using, which are legacy hardwares, which are basically old system with the cloud technology, which is very innovating and provides various services to do much more in our business instead of taking care of the old system and managing those servers and hiring skilled engineers for them. So infrastructure modernization is done in this way. What we do is we we rent things, we rent those hardware and those resources from the cloud providers like Google Cloud. Okay, so for example, we need 4 systems for our organization. So what we are going to do, we are going to use the cloud technology, we are going to rent those services for as much amount of time we want, and we are gonna pay for that particular amount of time only. So this is an infrastructure modernization using cloud technology. Okay, yeah, and there is another modernization that happens with the application. Now, an infrastructure modernization is a different thing, and an application modernization is a different thing. Okay, so talking about the application modernization, now how this can take place. Because look, organization are using their old system and that cannot be replaced because they are also working. Those system are still running and they can't be like stopped. So what we have to do, we have to take care of that legacy systems also, but also along with that we have to make some innovation around that. So what we need to do, we have to lift those ongoing systems and shift to the cloud technology as well as bring some innovation along with that. So in this way, we can modernize our application. Okay. So here it is written, the migration of existing or legacy on-premise application to new application or platforms in the cloud, including the integration of new functionality and architectures. Okay, so here it is term legacy on-premise application. So legacy means which are some old system which has been already working still a long time, but they are like outdated systems, but they can't be stopped. Okay, because they are still doing some tasks, they have some core business logic going on, so they can't be stopped. But yes, we can shift, we can migrate those systems to the cloud platform, we can add some new functionality, we can integrate services to those
legacy systems, and in this way we can modernize our application using Google Cloud technologies. Okay, so yeah, uh, till now we studied about two types of modernization that can be done with our Google Cloud. First one is infrastructure modernization, and second one is application modernization. Okay, um, till now, do anyone have any doubt? You can ask me in chat box. Okay, I was not seeing. Okay, fine. I will just move on. Yeah, as I told you, we are going to study about the digital transformation as well as the value of data in any organization. See, nowadays, any organization or industry has a particular value for the data, because everything, the data is the most crucial thing for any business to survive in the industry. Because why? Because with data, businesses can get various insights from it, and that data can help their businesses to grow. Let's see how. This is a definition for data. It is any information that is useful to an organization, and data can involve text, audio, videos. Okay, moving forward. Yeah, so the data in any industry can be categorized into three particular domains. Okay, first is our user data. Let's see what is user data. See, uh, the user data is basically the data which contains all the information which is about our end users in any organization. It is the data which is about the customers that we are dealing with in any company. So it can be their personal information or their uh, purchase details or anything. So this is the user data in any organization. Now, next category is our corporate data. So, what is corporate data? So, corporate data means the data about the company which is taking care. Okay, so it can involve your employee details, your sales pattern, and your profit, about the loss, what's happening in your company. So, these type of all information falls into the corporate data category. Next category is industry data. Now, this data particularly involves outside any organization. In that particular domain, all the industry that are running behind, इसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. The data found outside of an organization, और इस डेटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है. So this type of information falls in the industry data category. Okay. Yeah. So yeah, when we talk about our data, so we can see our data in these two perspectives. First one is unstructured data, and second is your structured data. So let's see this one by one. So first of all, what is a structured data? See, uh, any information that is stored in a particular order or a category, or it is classified in a particular manner, that data will be considered as a structured data. And this type of data is pretty easy to be work upon or do analytics on it. For example, what can be a structured data? So, in a relational table, the information stored about the customer, like their credit card details, their name, or these type of detail stored in a particular fashion or particular manner, this can be termed as a structured data. And they are, yeah, as said, they are easily stored and managed in databases. Next type is unstructured data. So yeah, so these type of data are, they are not able to be classified in a particular category, or
they are not able to be organized in a particular manner. That's why they are called as unstructured data. For example, here it is shown images or audios or some videos. These are some examples of unstructured data, because see, when you are having thousands of photos or images, you cannot classify that whole group of data into a particular category. Okay, so these type of data is termed as an unstructured data. Okay, so I hope everyone was listening. So I have a question for you all. Yeah, I want to add something. Okay. So those unstructured data are also stored as an object. Okay. Yeah, yeah. There's a term blob. Uh, that is binary large objects. These types of objects are basically unstructured data. So both the structured and unstructured, both the data are mainly stored in data lake, right? सो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं डेटा लेक के अंदर, बट स्ट्रक्चर्ड डेटा आपके पास एसक्यूएल या फिर माइस्क्यूएल के कुछ पर्टिकुलर आपके पास ऑप्शन ही होगा जिसमें आप स्टोर कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो और उसको यूज करना थोड़ा इजी पड़ जाता है, बट उसमें एनालिटिकल थोड़ा मुश्किल हो जाती है। बिकॉज उसके लिए प्री एनालिटिकल, प्रोसेसिंग हाँ, करनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। यस। ओके, सो जो क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है, मुझे उसके आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। कम ऑन। सो मैं रीड आउट कर देती हूँ एक बार क्वेश्चन। इमेजेस एंड वीडियोस आर एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डेटा? ओके, unstructured. Okay, some are saying structured. Okay, okay, most of you are correct. So images and videos, as I mentioned earlier also, images and videos are example of unstructured data. Why? Because they are not arranged according to a preset data model or schema. Since they have no organization and tend to be qualitative, they have seen as unstructured data. See, as I also told earlier, they cannot be organized in a particular set or a predefined classification. That's why they are termed as an unstructured data. Okay, so till now anyone have doubt in what I like covered right now? Any doubt? I will just sum it up what I said till now. We discussed about the digital transformation that can be done using Google Cloud. So first digital transformation is infrastructure modernization. Okay, infrastructure modernization can be done using services like instances, using your app engines and Kubernetes. Then is our application modernization. Okay, then we studied about the data, the value of data in any organization. Okay, then we studied about our structured and unstructured data. Then we studied about types of data in any organization, which was user data, corporate data. Okay, till now anyone has doubt in this? I have a doubt कि how can images and videos are unstructured? अगर हमने उन्हें पहले ही classify कर दिया कि ये images है and ये videos है, तो हमने एक तरह से classify तो कर दिया ना उन्हें in a set. No. You okay, fine. Let me explain this. For example, suppose I'm not asking that you are specifying images. I am talking like you have a particular domain of images, but you cannot put all those images in a particular domain, okay, in a particular category. For example, you are having 100 images, but you are not sure what these images are really about, what these images are telling you about. Okay, I'm talking about the content in that image. You cannot classify those images before processing them. Okay, you have to analyze those image before putting into some category. For example, you are having some animals images,
but you cannot classify which animal that is. Okay, so you have to do some pre-processing before putting it into some category. Okay, did you get what I was saying? Yeah. Okay. Any more doubt? Okay. So, yeah, we studied some basics about what can be done with Google technology. Okay, now we will see what we have to cover in the course which is being assigned to us for this campaign. Okay, Siddhant will be showing you some labs, how you have to do that lab. He will be performing in front of you, and you can ask doubts from that also. Okay. Yeah, wait. Okay. Yeah, Siddhant, you Uh, can just give them a demo about how they have to do the labs, okay? So okay. that they can also start with their course. Okay. The My screen deadline is, is 14th of December, guys. Please remember yes. that. After that, you will not be able to purchase the course or get the batches. So please complete those labs before that. I'll just I give guess you. most of you have already got the monthly subscription. Okay. So let it load. It takes a few minutes. मेरी वीडियो चल रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, Yes, yes. क्या है दिस इज वॉइस नोट ओपन आई गेस सर्वर इज ओके so yeah, I have told about this earlier yesterday that we have to complete this third part. Okay, so here are the labs. Here are the labs that you have to cover, and here are the some topics that you have to cover. These are basically a course. Okay, आपको एक कोर्स कोर्सेरा पर भी मिल जाएगा बट वो पेड होगा बट आपके यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ये सब ठीक है तो ये आपको सारी वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो आपको खुद से कंप्लीट करनी है इसमें लास्ट में आपको हर मॉड्यूल के एंड में एक क्विज है जो कि आप खुद से ही करेंगे वो तो मतलब कि आपने जो पढ़ा है उस मॉड्यूल में वो उसी के हिसाब से पूरा क्विज होता है उसी पे मॉड्यूल पे ठीक है तो जैसे कि ये मेरा ये पहला मॉड्यूल है सेटिंग अप क्लाउड सॉल्यूशन एनवायरनमेंट तो उसी के जितनी भी लैब जितने भी इसने पढ़ाया है इस सारे लेक्चर्स में उसी के ऊपर एक क्विज होगा सीधा ठीक है ओके तो ये तो सिंपल है आपको कैसे कंप्लीट करनी है सारी चीजें जैसे ये कंप्लीट पहला कंप्लीट करोगे आप तो आपको पहला बैच मिलेगा ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको ओके तो ये सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आपको ये पहला बैच मिलेगा ऐसे आपको कितने करने हैं? ऐसे आपको कई बैचेस करने पड़ेंगे 13 टोटल बैचेस हैं जो कि आप इसको इस पाथ में आपको 13 बैचेस करने इन टोटल ओके तो ये कुछ कोर्सेज है जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे जितने भी ये कोर्सेज लिखे हैं सारे कोर्सेज हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स होंगे और यहाँ पे हैंड्स ऑन लैब्स है क्वेस्ट में तो हैंड्स ऑन लैब्स क्या होती हैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि 6 क्रेडिट्स लेगा बट आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन है तो आपको कोई प्रॉब्लम कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपके पास बहुत है क्रेडिट्स के नाम पे तो जैसे आपने एनरोल का इस टेस्ट के लिए टेक द प्री असेसमेंट इस प्री असेसमेंट में आपको पहले ये लैब कराएंगे इस लैब में क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ तो इसमें पहले इसने बोला कि इंस्टेंस क्रिएट करना है इसमें पहला है क्रिएट अ जंप होस्ट इंस्टेंस उसके बाद से फिर कुबरनेटिस सर्विस और एचटीटीपी लोड बैलेंसर ये सब कुछ करना है आपको इसमें टास्क में तो पहला टास्क क्या है अपना कि इंस्टेंस क्रिएट करना है तो स्टार्ट करके चेक करते हैं इंस्टेंस में आपको दिखाता हूँ इंस्टेंस कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं आप
आज ये ज़्यादा टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में भी। सर्वर पर लोड ज़्यादा है आज के। क्योंकि ये सिमुलेशन ही है, तो आप ये मत सोचिए कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी इतना स्लो लोड होता है, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है जिसमें आपको सिखाया जाएगा। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म अलग है, बट इसमें सिमुलेशन वैसा ही बनाकर आपको देते हैं। यूआई वगैरह सब कुछ सेम रहेगा उसके अंदर। ये चीज स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम आ रही है। आई हैव अ या डाउट कि जैसे आप लोग गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, तो आई बीन यूजिंग AWS क्लाउड फॉर लाइक 3-4 months नाउ, एंड टू लाइक सेम चीज़ इंस्टेंस होस्ट करने के लिए एंड वर्चुअल मशीन्स एंड अदर स्टफ लाइक ऑटोमेशन एंड स्टफ जेनकिंस। सो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि आप लोग गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ AWS क्लाउड? क्योंकि एज ऑफ माई एक्सपीरियंस AWS इज क्वाइट यूजर फ्रेंडली। मतलब अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आता, यू जस्ट गो टू द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ऑफ द AWS एंड वो आपको प्रॉपर्ली बता देता है। सो इट्स क्वाइट यूजर फ्रेंडली। तो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड AWS? कोई मेजर तो डिफरेंस? पहली चीज आपको ये बता देता हूँ, ये हमारा GDSC क्लब जो बना हुआ है, गूगल डेवलपर क्लब है, तो इसमें हम मेनली गूगल की सर्विसेज आपको दिखाएंगे। ओके। और दूसरी चीज ये कि AWS आपको काफी सारी चीजें नहीं भी दे पाता है जो कि गूगल क्लाउड आपको दे रहा है। जैसे आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए, इसमें आपके वीडियो लेक्चर के साथ साथ क्वेस्ट भी हैं, इसमें हैंड्स ऑन लैब्स है आपके ऊपर, जो भी आपको और चीज सिखाई जा रही है उसके ऊपर लैब्स है, और कैसे करना है सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये। और जैसे आपने कोई जैसे मैंने कंप्लीट करा कोर्स, तो मुझे ये बैच अपने प्रोफाइल पे दिखने लगेगा। तो ये काफी अच्छी अचीवमेंट जैसा फील होने लगता है कि मैंने कुछ करा है। तो ये एक मेन चीज है कि मैंने गूगल क्लाउड चूज करा है। ओके। और जैसा आपने बताया जंकिन्स एंड ऑल, तो वो सब कुछ सेम रहता है। मेन Yeah. मेन जितनी भी सर्विसेज सारी सेम रहती है हर क्लाउड पे। ओके। और गूगल तो वैसी नेम से इतना फेमस है, तो हर कोई यूज करना ही चाहेगा गूगल को। नहीं, बाकी जो जितने भी डॉकर्स वगैरह भी हैं वो भी सारे ओपन सोर्स है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी अवेलेबल है। सो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। आप कोई भी यूज कर सकते हो जो आपको ठीक लगे, बट गूगल क्लाउड हमने इसलिए चूज करा क्योंकि ये हमें बेटर लगा था इन तीनों में से अभी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स उसके बाद क्या? उसके बाद आप अगले इवेंट्स में कर सकते हो ट्राई। जैसे कि जैसे कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, तो ऐसा है नहीं कि खत्म हो चुका है, आपको सब कुछ आ गया है। इस कोर्स में सब कुछ नहीं है, उसके बाद भी आपको काफी कुछ चीज सीखनी पड़ेगी खुद से। तो इसमें गूगल क्लाउड क्या करता है, हर टाइम ना इवेंट्स लाते रहता है, ताकि आप फेमिलियर ले, आप कंसोल यूज करना आपका बनता रहे, मतलब आपका कभी फ्लो ना टूटे। तो उसके लिए गूगल क्लाउड भी अपना इनिशिएटिव लाते रहते हैं, जिसमें कई सारी गुडीज भी आती है। कई बार इस प्रोग्राम में गुडीज अभी नहीं है, अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट कई सारे ऐसे प्रोग्राम वो खुद लाते हैं गूगल क्लाउड जिसमें गुडीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ जो कि अभी चल रहा है, बट अब वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। तो उसमें अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे इनिशिएटिव्स कई सारे लाते रहता है ये गूगल क्लाउड। तो बहुत सही है गूगल क्लाउड इस चीज के लिए, कि अगर आपको गुडीज के लिए इंटरेस्ट है, मतलब कि आप कुछ कर रहे हो, आपको उसका अचीवमेंट फील हो रही है, और आप उसके साथ साथ कुछ चीज मिल भी रही है, तो आप शो भी कर सको दूसरों को, तो काफी अच्छी चीज है इसके लिए। जैसा कि ये है आर्केड गेम। ओके। तो आर्केड गेम इस टाइम इसका चल रहा है, दिसंबर 27 में इसका स्टोर खुलेगा, जिससे आप अपने क्रेडिट्स का यूज करके रिडीम कर सकते हो। तो क्रेडिट्स कैसे आएंगे, तो इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं, आप जैसे ये देख रहे हैं नवंबर ट्रिविया, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सारे लैब्स होती हैं इसमें, तो क्या आपको कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद से आपको बैजेस मिल पाते हैं। ओके। तो ये बैजेस मिलने पर आपका एक क्रेडिट एक पॉइंट बढ़ता है। और आर्केड गेम में कई सारे पॉइंट्स ऐसे, शायद ये सितंबर से चल रहे हैं, तो सितंबर ट्रिविया से इंक्लूड होता हुआ आ रहा है। तो ऐसे कई सारे आपके पास बैजेस इकट्ठा करने पड़ेंगे, उसके बाद आपके पास कई सारे क्रेडिट्स आ जाएंगे, आर्केड गेम क्रेडिट्स। उस क्रेडिट्स का यूज करके 27 जब ये खुलेगा इसका रिडेम्पशन शॉप, वहां जाकर के आप रिडीम कर सकते हैं। ये सारे प्राइजेस हो सकते हैं काउंटर में। ओके। तो ये काफी अच्छी चीज है इस चीज के लिए। जैसे ये बैजेस है कुछ, तो बैजेस आप इकट्ठा करो, एक बैच को कंप्लीट करने के लिए आपको कई सारी लैब्स करनी पड़ेंगी, तो वो बहुत मुश्किल भी नहीं होती है, क्योंकि साथ साथ आपको यहाँ पे चीजें भी लिखी हैं कि क्या करना है बैच इस लैब के अंदर।
तो ये सारी चीज आप फॉलो करते जाओ कंसोल में, और बेसिकली आप बैजेस आपको इजीली मिलते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक आईडी दिखा देता हूँ आपको, जिसमें मैंने बैजेस करे हुए हैं आपके गेम के। तो ऐसे इनिशिएटिव बहुत सारे लाते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है इस चीज के लिए कि आप फैमिलियर रहोगे और आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी एक, कि There are मैंने कुछ many करा people है। asking, so how can we get updates like this and win some batches with goodies? So look, you have to do practice. You have to be like consistent on this. That's why, You have to be active as well. yeah, exactly. That's when you get to know. Like, and one more thing, you have to be in some community where these type of updates like keep coming. So, okay, you have Yes. to be connected with some community. That's more important. ओके, तो जैसे यूजुअली आई कॉन्फ़िगर ऑल द एडब्ल्यूएस सर्विसेज थ्रू माय लिनक्स, तो गूगल में भी लाइक इज़ देयर कि या फिर आपको उसके इसमें जाना पड़ता है, लाइक जीयूआई या वहाँ पे करना पड़ता है, कमांड से हो जाता है? कमांड Like लाइन you, भी है और कंसोल भी आपका एसडीके भी है। कमांड इन क्लाउड शेल नाम के क्लाउड शेल है, या उसमें आप काफी कुछ जाकर ये रख सकते हो। अभी हम वो अभी करके दिखाएंगे, फिर आप अपनी लैब्स के साथ कंटिन्यू करना। जैसे ये आपको एमिली है जो मेनली यही सब चीजें हेड करती है, ये सारी चीजें होस्ट भी करती हैं। तो ये है कम्युनिटी। कम्युनिटी में जब जाकर के आप अपना अकाउंट बना लो, उससे आपको कई सारी अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। तो ये मंथली, ये तो छोड़ो, ये जो भी है टॉप टॉप सोल्यूशन ऑथर्स, इसमें इसमें कई सारे लोग आते रहते हैं। जैसे मैंने कोई पोस्ट डाली है, आस्क ओके क्वेश्चन, आस्क कोई क्वेश्चन पूछा है मैंने किसी से, तो मैं कम्युनिटी में सिंपली एक क्वेश्चन डालूंगा, उस क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें मुझे पता करनी है वो सब चीजें लिख दूंगा। मैं मैसेज डाल दिया मैंने, सब्जेक्ट क्या है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, जैसे कि मेरे को स्वैग्स के बारे में पता करना है तो सब्जेक्ट में डालूंगा स्वैग्स, अबाउट स्वैग्स, और यहाँ पर मुझे लेबल करना पड़ेगा किस चीज के ऊपर है वो। ओके, ये सिंपल चीजें हैं। इसके बाद से आप पोस्ट करेंगे सिंपल ये क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप पोस्ट कर देंगे ना, तो आपका ऑप्शन आपके पर कुछ टाइम बाद ना लोग उस पर कमेंट करने लग जाते हैं, आपको सॉल्यूशन बताने लग जाते हैं कि आप ये करो तो ये ठीक हो जाएगा, ऐसी चीज करो तो ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ये जो आंसर्स ये सब लोगों के आ रहे हैं, इसमें ना एक ऑप्शन होता है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो वो सिर्फ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है यहाँ पर, एक एक्सेप्ट एज अ सॉल्यूशन। तो वो करने के बाद यहाँ पर जितने भी टॉप सॉल्यूशन जितने लोगों ने करे हैं मंथली, उसके हिसाब से यहाँ एक लिस्ट आ जाती है, और इनको लास्ट में जाकर हर मंथ जो है इनको कॉन्ग्रेचुलेट करा जाता है कि आप इस मंथ के हाईली एक्सेप्टेड हाईली सॉल्यूशन ऑथर हो। तो ऐसे सबको ये सब नॉर्मल चीजें कम्युनिटी के अंदर, तो आप ऐसे कम्युनिटी ज्वाइन भी कर सकते हो सिंपली जाकर के भी, ठीक है। तो ऐसे आपको कम्युनिटी से अपडेट आते रहेंगे, कौन कौन से गेम आ रहे हैं, कहाँ से कौन सी गुडीज मिलेंगी आपको, सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी इसके ऊपर। तो एक ये चीज थी आर्केड गेम के ऊपर, और ये भी चल रहा है। तो अभी शायद इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही लैब्स बची हैं अब, क्योंकि दिसंबर तो आ ही गया ऑलमोस्ट। तो दिसंबर 27 को ये रिडेम्पशन शॉप खुलेगी, और फिर उसको जिसने जिसने पॉइंट जितने करें उसके हिसाब से उसको चीजें मिलती जाएंगी। ये सब है बस। ओके, सो बैक टू दिस, ये है मेरी दूसरी लैब। पहली लैब मैंने सिंपली ओपन करा और अपने आप ही कंप्लीट हो गई। आपने देखा बहुत इजीली पड़ गया ये, मैंने उसी से स्टार्ट करा था और अपने आप कंप्लीट हो गई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि प्री असेसमेंट था। तो ये आपको बस सिंपली एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए था, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट करना है वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन वही था, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हम कंप्यूट इंजन। तो यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि क्या क्या क्रिएट करना है, रीजन एंड जोन सब कुछ किया हुआ है। सिंपली आगे हम ट्राई करते हैं। ये आता रहता है तो बैकग्राउंड में शायद कोई लैब भी रहे। और ये चीज ध्यान रखना, ये हमेशा इनकॉग्निटो मोड में ही खोलना है। ये ओपन गूगल कंसोल इनकॉग्निटो मोड में ही जाकर के आपको ओपन करना है हमेशा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि आपका फिर खुद से अकाउंट लग गया तो आपका कोई भी इंस्टेंस बहुत बड़ी चीज होती है किसी चीज के लिए। तो इंस्टेंस अगर खुला रह गया तो आपका फिर काफी बिल आ सकता है मंथली बेसिस पे, तो वो पे करना पड़ जाएगा बाद में जाकर। तो बेटर है कि आप इनकॉग्निटो मोड में करो, अपना अकाउंट ही यूज ना करो। ओके,
इसमें कुछ बेसिक चीजें करनी है। तो पहला इसमें बताया एक्टिवेट करना है क्लाउड शेल, ठीक है। तो अभी करते हैं। सबसे बेसिक यूआई है गूगल क्लाउड कंसोल का। तो यहाँ पर आपको ये सारी सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करता है वो दिख जाती है यहाँ पर। और टॉप ये पिन हो रखी है कुछ मेन टॉप टॉप सर्विसेज। इसके अलावा और भी देख सकते हैं यहाँ पे मोटर्स में जाकर के तो और भी चीजें दिख जाएंगी, जैसे एनथोस है, सिक्योरिटी कंप्यूटिंग इंजन, बहुत कुछ दिख जाएगा आपको यहाँ पे। फायर सोर्स से लेकर के ऐप इंजन बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ओके, हमारा भी काम है क्लाउड कंसोल को, क्लाउड शेल को एक्टिव करना। ये एक्टिव हो गया। अब क्या करना है इसमें प्रोजेक्ट आईडी को कॉन्फ़िगर करना है। तो प्रोजेक्ट आईडी पहले लिस्ट कर दे कौन कौन सी प्रोजेक्ट आईडी अपने पास अवेलेबल है। तो ऑथराइज कर देते हैं इसको। और ये वाली हमारी प्रोजेक्ट आईडी अपने पास है, ठीक है, ये चल रही है। अब हम देख रहे थे कौन सी एक्टिव कौन सी है इसके ऊपर। ये वाली इसके ऊपर एक्टिव की है, ठीक है। तो पहला काम है हमारे को अंडरस्टैंडिंग रीजन्स। ये पढ़ने की चीजें आप पढ़ लेना कि रीजन्स क्या होते हैं, जोन्स क्या होते हैं, सारी चीजें उसके ऊपर है, रीजन्स एंड जोन्स। तो रीजन और जोन्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। रीजन जो है एक रीजन हो गया, जैसे कि इंडिया एक मुंबई का एक रीजन हो गया। उस रीजन के अंदर जोन्स में कितने 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 चीजें कितने आपके पास डेटा स्टोर्स है, मतलब क्या कैसी क्या कैसे कैसे बताऊं। ओके, सो रीजन जो है एक रीजन हो जाता है, जैसे एशिया रीजन हो गया। एशिया रीजन के अंदर हमारे पास जोन है मुंबई में। मुंबई में डेटा अपने पास कौन कौन सी जगह पर डेटा बेस बना हुआ है, वहां जाकर के स्टोरेज होगी, तो वहां जाकर के चीजें स्टोर होती हैं। हम इंस्टेंस जो है जोन के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ रीजन दिख रहा हो कहाँ कहाँ के ऑप्शन हमारे पास है, वेस्टर्न यूएस का, सेंट्रल यूएस का, ये सारे रीजन है। उसके ऊपर ही जोन्स है कि कहाँ कहाँ उसके अंदर जोन्स बने हुए हैं, ये रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स बने हुए हैं, एशिया, एशिया ईस्ट वन एंड ऐसे सब। सो हमारा पहला काम है कंप्यूट इंजन करना, ठीक है। तो अगर आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे मुझे खोलना पड़ रहा है, इसको बार बार ढूंढना पड़ेगा कंप्यूट इंजन जाकर के, और फिर कंप्यूटर इंजन से मुझे जाना पड़ेगा वीएम इंस्टेंस पे। तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं यहाँ सिंपल कॉपी करूंगा ये चीज, सर्च में गया, पेस्ट किया, एंटर किया, यहाँ से सीधा खुल जाएगा मेरा वीएम इंस्टेंस के लिए ऑप्शन। अगर ये तेज चलेगा तो बेटर रहता। ओके, सर्च करा मैंने, वीएम इंस्टेंस खुल गया मेरा ऑप्शन में। मैंने यहाँ पे इसको क्लिक करा। जैसे कई बार क्या होता है कोई चीज पिन नहीं होती है, तो आपको कई बार नीचे जाके ढूंढना पड़ता है, तो उससे बेटर आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप सिंपली उस चीज को सीधा यहाँ से खोल दो। ओके, तो मैंने वीएम इंस्टेंस के लिए ओपन करें। अब मैं यहाँ से करूंगा एक क्रिएट इंस्टेंस। मुझे चीजें दी हुई है कि नेम क्या होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए, जोन क्या होना चाहिए, और सीरीज, ये मशीन टाइप क्या होना चाहिए, सब दिया हुआ है पहले से। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मंथली कितना आपका, अगर ये खुला रहेगा आपके मेन अकाउंट पे तो आपको मंथली काफी चार्ज हो सकता है ये, क्योंकि पर आवर भी काफी ठीक ठाक है, बट मंथली चार्ज काफी ज्यादा चला जाएगा आपके लिए। एज अ स्टूडेंट ये ज्यादा ही है मेरे लिए। मैं इतना क्यों दूं, मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है कि मैं सिंपली ये यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं रीजन पे आता हूँ। तो अपने को दिया है यूएस वेस्टर्न पहले से सेट है, जोन भी पहले सेट है, डिफॉल्ट सेट है ये, तो अपने को इसमें कुछ नहीं करना है। E2 भी डिफॉल्ट सेट है। मैं सीरीज दिखा दूंगा कि बस कौन कौन सी अवेलेबल होती है, जैसे N2 अवेलेबल है मेरे पास, ये सारी चीजें इसमें सब कुछ लिखा हुआ है इसके नीचे की कौन कौन सी चीजें क्या होती है। और कई बार आपको मिलेगा कि आपको N1 बनाना पड़ता है, जैसे चैलेंज लैब में ना मोस्टली N1 बनाने को बोलते हैं, क्योंकि N1 बहुत बेसिक हो जाता है यहाँ पे सीरीज की।
तो इसमें भी E2 बनाने को दिया है। तो E2 करा हमने। मशीन टाइप में जो ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास कई सारे कि आपको कितने मेमोरी चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, सारे ऑप्शन है यहाँ पे। कितना मेमोरी, कितने सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू जो भी है, वीसीपीयू जो भी चल रहे हैं, कितना चाहिए आपको, सब यहाँ पर ऑप्शन दिख जाते हैं। बट अपने को डिफॉल्ट रखना है फिर, तो वीसीपीयू डिफॉल्ट रखा है यहाँ पे, ठीक है। और एक बूट डिस्क दिखाते हैं आपको। बूट डिस्क, ये है बूट डिस्क, पूरा ही दिखा देता हूँ। बूट डिस्क, तो मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ। इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास। जैसे अभी मेरा डेबियन मेरा सेट हो रखा है अपने आप, बाय डिफॉल्ट सेट है डेबियन। मैं चेंज कर सकता हूँ इसको, किसी पर भी, उबंटू पर भी सेट कर सकता हूँ, सेंटोस पर भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। वर्जन मेरा कौन कौन से आ सकते हैं, वर्जन मेरे डेबियन के जितने भी अवेलेबल है वो सारे दिखा देगा। जैसे उबंटू के मैंने सेट करा तो उबंटू के दिखा देगा। उबंटू का मैंने सेट करा तो उबंटू की वर्जन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं अपने पास वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो अपने को दिया है डेबियन पे ही रहना है, डेबियन भी रहना है लिनक्स का। तो सब कुछ सेट है पहले से, बुल सेट, ठीक है। 11 करना है अपने को 10 से। ओके, ये नहीं चलेगा तो ये वाला चलेगा, ठीक है। और क्या दिया है, फायरवॉल। तो ये अपना हो चुका है नॉर्मल सेट, तो सिलेक्ट कर लो। फिर एक फायरवॉल सेट करने को आ रहा है। इसमें अलाउ करना है HTTP ट्रैफिक, HTTPS, दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर मुझे दिया है कि HTTP ट्रैफिक अलाउ करना है, तो मैंने कर दिया। मैंने क्रिएट करा, फिर मैंने सिंपली इसको क्रिएट पे क्लिक करा। अभी कुछ टाइम लेगा क्रिएशन के लिए, और फिर अपना क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके हम SSH करेंगे इसके अंदर, इसकी मशीन में जाकर के। तो मैं दिखा देता हूँ। जैसे SSH मतलब क्या हो गया, हम इसकी कमांड प्रॉम्प्ट इसका खोल देंगे। बेसिकली आप ये कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट हम खोल देंगे SSH के थ्रू, और उसमें जो भी चीज़ हमें कॉन्फ़िगर करनी होगी उसमें हम कर लेंगे वहाँ पे जाकर के। जैसे क्रिएशन में टाइम ले रहा है तो स्टेटस अभी इसका लोडिंग हो रहा है, जहाँ टिक हो जाएगा वहाँ मतलब ये क्रिएट हो चुका है इंस्टेंस। तो हम वेट करेंगे अभी, और ये हो गया, ठीक है। जैसे जैसी चीजें दी थी वहां पे मैंने सेम वही सब करा हुआ है। अब मैं SSH करूंगा इसकी थ्रू। लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, कनेक्ट में SSH का ऑप्शन, बस उस पर क्लिक करना है और ये अपना कंसोल खुल गया। ओके, सो अभी हमें SSH क्या करना है, तो हमें काफी चीजें दे रखी हैं क्या क्या करना है अपने आप। पहले सब कुछ यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको सिंपली कॉपी और पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्टॉल करना है पहला Nginx वेब सर्वर, ठीक है। सो एक सारा स्टेप यहाँ पर है, कॉपी करा मैंने, पेस्ट करा, शुरू हो गया अपना। और क्योंकि ये रूट यूजर नहीं है तो इसलिए मुझे सूडो लिखना पड़ रहा है कमांड के आगे। बिना सूडो के नहीं चलेगा क्योंकि रूट यूजर नहीं है। ओके, सिंपली कॉपी एंड पेस्ट वाला काम है यहाँ पे अभी। फिर यहाँ पर मुझे एक आया है ऑप्शन इस चीज का, एक्सटर्नल IP एड्रेस मिला होगा मुझे अभी, नहीं एक्सटर्नल IP। ये आउटपुट आया है, एक्सटर्नल IP कहाँ पर है अपना, to see the web page, return to the console and click external IP link in for a machine. Okay. ऑल्सो एक और चीज़, गूगल क्लाउड में फ्री टियर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है क्या? अवेलेबल है, काफी चीजों पर अवेलेबल है, काफी चीजों पर मिलेंगे, काफी चीजों पर नहीं भी मिलेंगे। जैसे मैंने सिंपली ज्यादा कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। चेक माई प्रोग्रेस करना हमेशा याद रखना कि जरूरी है चेक माई प्रोग्रेस, और जो ये ID प्रोवाइड करता है इसी के ऊपर चेक माई प्रोग्रेस होगी। फिर अब गलती से आपकी खुद की ID खुल गई है तो उसके ऊपर चेक माई प्रोग्रेस नहीं होगी। और एक और चीज, बिलिंग अकाउंट अपना खुद का अपने डालना नहीं है कभी भी, ठीक है। जैसे कई बार बोल देते हैं ना कि बिलिंग अकाउंट डालने का ऑप्शन आता है, तो इसका मतलब आपने गलत ID से एंटर करा है। कि अगर ऐसे आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो और आ जाएगी आपका बिलिंग अकाउंट नहीं है, तो इसका मतलब आपने गलत ID ओपन करी है। आपको सिर्फ यही जो प्रोवाइडेड ID है इसी के थ्रू एंटर करना है।
इसी के थ्रू जाना है, सब कुछ करना है आपको, ठीक है। तो ये सिंपल था। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास, क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस इन द क्लाउड। ओके, तो ये हमें जाना है क्लाउड शेल में और सिंपली ये सब क्रिएशन का क्लिक करते हैं स्टार्ट। सो एक्टिवेट क्लाउड शेल। कौन सी आईडी थी? ये आईडी हमें प्रोवाइडेड है या फिर हमें बनानी है? ये जो प्रोवाइडेड है, जैसे आप स्टार्ट करते हो लैब तो आपको आईडी अपने आप मिल जाती है सारी, अच्छा। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हो फिर लैब, ठीक है। सो ये है मेरा DNS, मैं क्लाउड शेल और शेल ओपन करूँगा। दूसरा तरीका दिखा रहा है हमें कैसे शेल से बना सकते हैं इंस्टेंस। हमने मैनुअली बनाया था, ठीक है, शेल के थ्रू हम ऑटोमेट करेंगे। अब इसमें जोन दे दिया है कि कौन सा जोन होगा और कौन सी सारी चीजें होंगी, सारी यहाँ पर आपको दे दिया है, मशीन टाइप होगा, ठीक है। तो ये क्रिएट हो रहा है, हो गया। यहाँ सिंपली जाकर चेक इन प्रोग्रेस, हो गया। एंड देन सी द डिटेल्स, अपने सिंपल से आगे जा सकते हैं, हेल्प का क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएंगी सारी, और इसे एग्जिट करना है तो कंट्रोल C एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये SSH करने के लिए इसके अंदर, जैसे हमने अभी SSH मैनुअली करा था, इसके थ्रू भी SSH कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, कुछ गलत आ रहा है। हमने सिंपली SSH करा है, फ्रेज क्या आ रहा है अपने को, एंटर, एंटर अगेन, हो गया। जैसे सिंपली हो गया, जो भी होना था, फिर हम एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट लिख हो गया, किसी का एग्जिट हो जाएगा, या SSH कमांड एग्जिट हो चुकी है हमारी। तो हमने मैनुअली वहां पर करा था, वो यहाँ पर हमने क्लाउड शेल के थ्रू कराया बस। फिर ये लास्ट में अगर ये कुछ चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर आपको पता है कि आंसर क्या है तो आप सिंपली उस पर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो एक पे टिक करो तो अपने आप ही ऑप्शन दिखा देता है कि ये गलत है, तो आप नेक्स्ट पे कर सकते हो। तो ऐसा है नहीं कि अगर एक बार गलत हो गया तो दूसरी बार हो सकता है कि आप सही कर जाओ। आपको ऐसी चीजें सीखने को मिल रही है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरे को 100 आउट 100 पॉइंट मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पर एंड कर दूंगा लैब। जैसे एंड होती है लैब, एक चीज आपको दिखेगा कि पहले मैंने सिंपली ये कर देना, आपकी मर्जी करने को, ठीक है। थैंक्स फॉर रिव्यूइंग। आपने ये जो सारी चीजें बनाई थी ये अब टर्मिनेट हो चुकी है, अब इस पे कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं चेक करता हूँ, ये चल रहा है अभी, ओके। अब मैं एक चीज चेक करता हूँ इसमें, मेरे पास कुछ टाइम तक खुला रहेगा, बट एक टाइम आने के बाद ये भी बंद होने लग जाएगा। तो जब तक ये यहाँ से सर्वर से सारी रिक्वेस्ट ले रहा है तो तब ठीक है, उसके बाद से खुद से बंद होने लग जाता है। तो अब ये है नहीं कि आपने वो बंद कर दिया तो आप इसे दोबारा चला सकते हो। ये सारी आईडी टर्मिनेट हो चुकी होती है, इसको आप ज्यादा तक नहीं चला पाते हो, तो ये जैसे बंद हो गया, ठीक है। तो क्लोज कर दो सिंपली। तो ये हमने ये लैब कंप्लीट कर ली सिंपली। ऐसे ही करके आपको ये सारी लैब सबसे नीचे की, और जैसे और का ऑप्शन है तो ऊपर से नीचे कोई से भी कर सकते हो। वर्चुअल मशीन बनाना है, कोई स्टार्ट विंडोज करना है, तो ये सिंपली आप दोनों में से कोई सा भी चीज कर सकते हो। अगर और का ऑप्शन है तो आप दोनों भी कर सकते हो, दोनों में से एक चीज भी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है ये सब। कुबरनेटिस इंजन आपको काफी चीजें इसमें पढ़ने को मिलेगा। लोड बैलेंसर क्या होता है, ये सभी चीज आपको इसमें मिल जाएंगी पढ़ने को। तो बेसिक फैक्ट्स है। एनी डाउट्स? अभी तक किसी को भी डाउट हो या कुछ समझ ना आया किसी को? ओके, नेक्स्ट आर्केड गेम कब है? तो लर्न टू अर्न होता था पहले, और उसको चेंज करके आर्केड गेम बना दिया था इन्होंने, गूगल क्लाउड वालों ने। सो आर्केड गेम नेक्स्ट कब होगा इसका अभी कोई अपडेट नहीं है, ओके। जैसे अपडेट आएगा हम आपको भी बताते रहेंगे, ग्रुप में आप एडेड रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे हम सारी चीजें। ऑल्सो ये GDSC का फिजिकल ग्रुप कहाँ रहता है इन कॉलेज? लाइक मैंने पूछा लोगों से सीनियर से कि GDSC का है, बट किसी को भी कोई नो, सब कहते नो आइडिया। फिजिकल क्योंकि इसमें 4th ईयर के बच्चे आते हैं, 3rd ईयर के भी आते हैं, 2nd ईयर के भी आते हैं।
तो हम बेसिकली स्प्रेड अराउंड रहते हैं कि हम अगर आपको किसी से भी बात करनी है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, आपसे मीट करने आ सकते हैं बच्चे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो ग्रुप मैसेज डाल दो, हम मिल लेंगे आपको। आनंद, ऐसे नाम कुछ है ऑफिशियल ऑफलाइन मीट्स होती नहीं है, क्योंकि कोविड में ही जब बना था ना ग्रुप, तो उसके बाद से कुछ ऑफलाइन इवेंट्स कम ही हो गए थे कॉलेज में। बट ऐसा होता है तो फिर इनविटेशन तो सबको आता ही है, अगर कुछ होगा ऐसा ऑफलाइन मीट तो आप मिल सकते हो टीम से पूरे। ओके, तो ठीक है फिर आप बता देना जब मिल सकते हैं, क्योंकि आप जो अभी बता रहे थे वो मुझे ऑलरेडी मतलब आई हैव प्रायर नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। तो मुझे जानना है कि इसके बाद क्या मतलब नेक्स्ट स्टेप। अभी आपने बोला लर्निंग फेज, तो ठीक है, लर्निंग फेज के बाद का नेक्स्ट स्टेप मुझे जानना था, बस उसके बारे में डिस्कस करना था। नेक्स्ट स्टेज आपका यही होगा कि आप इवेंट में एंटर करोगे। इवेंट एंटर करने के बाद आपके पास बैजेस आएंगे कई सारे, आपको कई सारी चीजें की नॉलेज हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर कई सारी इवेंट एंटर करे थे, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एप्स की थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है, ठीक है। ऐसे ही मुझे कई सारी ट्रिविया वगैरह एंटर करने। ट्रिविया क्या होती है कि आपको मंथली ना ट्रिविया आती है उसमें, जैसे मेरे अकाउंट में होगा भी, अवेलेबल होगा भी। मैं देखता हूँ कहाँ पर है। ट्रिविया खुला ही होगा मेरे अकाउंट में। तो ट्रिविया में क्या होता है, बेसिकली हर मंथ ट्रिविया आते हैं, और कुछ इसकी कुछ लैब्स होती है जो पर्टिकुलर वीक के लिए खुली रहती है। तो जैसे मेरा ट्रिविया यहाँ पे, ये रहा नवंबर ट्रिविया यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 20 क्रेडिट्स मांगता है। अगर आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आपको फिर क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। मैं कोई एक और चीज दिखाता हूँ, मंथली सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, कितना पे करना पड़ता है, एक और चीज होता है इसमें ऐसे ना। ये देखो, मंथली सब्सक्रिप्शन आपका $29 का पड़ता है, बट आपको फ्री मिल जाएगा इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू आपको एक $29 का मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है आपको। तो यार इसको थोड़ा यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा बेटर। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि लाइक पे एज यू यूज करके, मतलब जैसा हम यूज करते हैं वैसे पे करना पड़ेगा, ये या वो फिर? चीज नहीं है, ये क्या है कि आपको एक बेसिक आपको कंसोल है ये, ठीक है, आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें आप पे एज यू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको क्या है कि ये चीजें पढ़ाने के लिए है। इसका मेन जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है वो पे एज यू के ऊपर ही चलता है। वो मंथली वो सेकंड से मिनट बेसिस पर भी उसका चलता है पे एज यू को। बट इसका क्या है कि इसमें आपको चीजें सीखनी है, तो आप सीख इसके थ्रू सकते हो कि आपको पे अभी नहीं करना है उतना सारा। जैसा कई बार क्या होता है, इंस्टेंस खुला रह गया आपके पास, ये तो जो इंस्टेंस खुला रह गया तो प्लेटफॉर्म काफी है महंगा पड़ जाएगा। स्किल बूस्ट, ये पर्टिकुलरली इसी पॉइंट को पर्सपेक्टिव में रख के बनाया गया है। स्किल बूस्ट जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली लर्निंग के लिए है। जो आप पे एज यू गो की बात कर रहे हो ना, वो उनके लिए है जो एक्चुअली में वो सर्विसेज यूज कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस पर्सपेक्टिव, और उस पर्सपेक्टिव से सो उसकी पूरी एक बिलिंग अकाउंट क्रिएट होती है मंथली बेस्ड रेट पे। ठीक है, तो जो वो आप पे एज यू गो की बात कर रहे हो वो उन सब सीन सिनेरियोज में काउंट किया जाता है। ओके। ओके ओके। मैं आपको जैसे दिखा रहा था कि ट्रिविया क्या होती है। ट्रिविया में आपको यहाँ पर डार्ट के ऊपर इस बार था, आपको डार्ट के ऊपर और इस सब चीजों के ऊपर आपको ट्रिविया पहले वीक में था, ठीक है। सेकेंड वीक में आपको ये सब इलास्टिक सर्च वगैरह आपके पास चीजें आ गई। थर्ड वीक में आपने कुछ नया सीखा, मोंगोडीबी एटलस के ऊपर, ठीक है। तो आपने फोर्थ वीक में कुछ नया सीखा। तो ऐसे सब कुछ आपको ट्रिविया के थ्रू आपको हर मंथ आपको कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और अगर आपके पास मंथली सब्सक्रिप्शन है तो आपको 20 क्रेडिट्स के लिए कुछ दिक्कत नहीं है। और वैसे आपको क्रेडिट्स जो है ना कई बार मिल जाते हैं। जैसे आप कंप्लीट करते हो कोई कोर्स, आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं अपने आप ही कई बार, ठीक है। और आपके पास ऐसे मंथली सब्सक्रिप्शन अगर है तो आपको क्रेडिट्स की कोई चिंता भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब इसकी कुछ बैजेस हैं, जो कि जैसे मैंने वर्टेक्स एआई का करा था, तो वर्टेक्स एआई पे मशीन लर्निंग की चीज यूज होती है, टेंसर फ्लो एंड ऑल। तो ये वर्टेक्स एआई का मुझे बैच मिला हुआ है। तो ऐसी आपको चीजों का बैजेस मिलता रहता है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है अंदर से कि मैं कुछ कर रहा हूँ। जैसे मुझे लुकर का बैच मिला हुआ है, फ्लटर का मिला है, फायरबेस एंड ऑल। तो ये सारी चीजें आपको गूगल शीट का भी बैजेस में मिल जाता है। गूगल से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज का आपको बैजेस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये इवेंट्स चाहिए, जितने भी कलरफुल बैजेस आपको दिख रहे हैं सारी इवेंट्स के बैजेस हैं। और जितने भी नॉर्मल बैजेस आपको दिख रहे हैं ये आपको नॉर्मली कभी भी अवेलेबल होंगे, बट ये पर्टिकुलर टाइम के लिए अवेलेबल होते हैं इवेंट्स वाले बैजेस। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको इवेंट्स वाले बैजेस चाहिए तो। और किसी का कोई क्वेश्चन? एंड हम ये बैचेस कहाँ शो कर सकते हैं? ये बैजेस आपकी ना प्रोफाइल पे शो होते हैं।
सो ये प्रोफाइल पे मेरी शो हो रहे हैं, तो मैंने एक प्रोफाइल का लिंक कॉपी करा यहाँ से, ठीक है, और लिंक्डइन पे जाकर के मैंने फीचर्स में जाकर के पेस्ट कर दिया, फिर लिंक्डइन में जाकर के मैंने वेबसाइट पे जाकर के पेस्ट कर दिया। तो आपको आपकी प्रोफाइल पे जाकर के कोई भी देख सकता है आपकी बैजेस को। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है शेयर का, तो यहाँ से भी आप प्रोफाइल पे जाकर के शेयर कर सकते हो, फीड में जाकर शेयर कर सकते हो, काफी ऑप्शन आपके पास शेयर करने का, तो बैजेस हर कोई देख सकता है आपकी। मंथली सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा अगर आपने इस प्रोग्राम में एंटर करा है GCCP गूगल क्लाउड करियर प्रैक्टिशनर प्रोग्राम, तो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन आपके इस अकाउंट पे दिख रहा होगा अगर आपने करा है तो। और आपको मेल भी आया होगा 9 क्रेडिट्स का, तो 9 क्रेडिट्स लेना। अगर की होगी तो उसके बाद फिर वो मंथली सब्सक्रिप्शन हो क्या होगा? फर्स्ट लैब कंप्लीट किया आपने? कल के लैब में जो हमने कोड एक्सेस करने को बताया था, आई थिंक वो सबने फर्स्ट लैब एक्सेस कर ली है, क्योंकि उस लैब को एक्सेस करने की भी डेडलाइन 30 नवंबर है। फिर उसके बाद आप फिर नहीं कर सकते, आपको मंथली सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलेगा। ओके, नॉट येट आई विल को दिखाता हूँ। उसके बारे में भी बता दो फिर आज। ओके, जैसा कि आपने जिस आईडी से आपने GCP पे रजिस्टर करा है उस पर आपको एक मेल आई होगी, ठीक है, आपको मेल देखता हूँ। तो एक गूगल क्लाउड EDU से आपको मेल आई होगी, कांग्रेचुलेशन यू आर एनरोल्ड इन द प्रोग्राम। तो इसमें यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, कोड है ये, यही कोड जो है सब कुछ मेन है, यही कोड से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो ये कोड आपको कॉपी करना है, क्योंकि 30 नवंबर तक ये अवेलेबल है, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगा ये चीज। तो आपको ये कोड कॉपी करना है, और ये जो है इनकॉग्निटो मोड में ओपन होगा, तो बेटर है कि इनकॉग्निटो मोड में आप सीधा ओपन करें, ठीक है। तो मैंने तो ले लिया, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कैसे आप चीज कर सकते हो। ये मेरे पास सब्सक्रिप्शन है तो मैं दोबारा नहीं कर सकता हूँ इस चीज को। यहाँ पर आकर के आप इसको पेस्ट करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, और ये कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, एंड सबमिट। जैसे सबमिट करा मेरे पास 9 क्रेडिट्स आ जाएंगे। अब मैं जहां जैसे जाकर के ज्वाइन करूंगा, यहाँ से मैं गूगल अकाउंट पे जाकर के एंटर करूंगा और मैं अपना गूगल अकाउंट डालूंगा इसमें। तो गूगल अकाउंट कौन सा डालना है? जिस पर ही मेल आई थी, जिस पर ही मेल आई थी वही अकाउंट इसमें डालना है, ठीक है, वही अकाउंट यहाँ डालना है, पासवर्ड डालना है, सब कुछ करना है। आपको 9 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में शो होने लग जाएंगे। यहाँ प्रोफाइल पे जाकर के यहाँ 9 क्रेडिट शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, 9 क्रेडिट शो हो गए तो उसी पे रहना है, इनकॉग्निटो मोड में ही रहना है। और कैटलॉग का ये जो पहली लैब दिख रही है यहाँ पे, टूर ऑफ गूगल क्लाउड हैंड्स ऑन लैब, इसको स्टार्ट कर देना है। इस पे क्लिक करके स्टार्ट लैब पे क्लिक करना है सिंपली, और इस लैब को एटलीस्ट 6 मिनट्स तक ओपन रहने दीजिएगा, क्योंकि 6 मिनट्स तक के बाद ही लेगा ये, आपको सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा। एटलीस्ट 6 मिनट तक इस लैब को ओपन रहने देना है, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हो कि इसमें जो भी टास्क दिए हैं वो भी कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें सिंपल एक ही टास्क मेन है, जो है API सर्विस को एनेबल करना। तो कौन सी API एनेबल करनी है? डायलॉग फ्लो। तो मैंने सिंपली ओपन करा इनकॉग्निटो मोड में, और यहाँ पर अपने पास आईडी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये पासवर्ड आया मेरा, मैंने यहाँ पासवर्ड डाला, एंटर करा, आई अंडरस्टैंड। ये सब आपको करना है मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए। 9 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में आ चुके हैं अभी अगर आप ये लैब कर रहे हो ऐसे इस स्टेप्स के थ्रू, तो 9 क्रेडिट्स आपके अकाउंट में आ चुके हैं। ये आपको मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए करना है, ठीक है। तो ये मेरी कंसोल खुल चुका है, थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। ओके, तो मुझे डायलॉग फ्लो API को एनेबल करना है, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, सर्च में गया, पेस्ट करा, एंटर करा। अब इसमें डायलॉग फ्लो API का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं देखता हूँ, देखते हैं। और एक और ऑप्शन था यहाँ पर, आपको API लाइब्रेरी के थ्रू जाकर के ऑप्शन आप कर सकते हो, जैसे API सर्विसेज है, API सर्विसेज है, इसमें आप लाइब्रेरी में जाकर के भी ये चीज एनेबल कर सकते हो। आपको सर्च वहां पे भी करना पड़ेगा। तो ये एक डायलॉग फ्लो यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है। एक ये तरीका है, आपको सर्च में डाल करके डायलॉग फ्लो आपको सीधा मिल जाएगा। और दूसरा तरीका जो लैब में किया हुआ है वो है लाइब्रेरी में जाकर के
एपीआई सर्विस पे क्लिक करने पर एपीआई एंड सर्विसेज, इसके थ्रू लाइब्रेरी में आना है। लाइब्रेरी में आकर के आपको डायलॉग फ्लो सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डायलॉग फ्लो एपीआई सर्च करना है, ठीक है। प्लीज सर्च करा और ये आ गई मेरी डायलॉग फ्लो एपीआई। ठीक है, इसको सिंपली एनेबल करना है, ये पहला सिंपल टास्क है। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये कंसोल का थोड़ा इजी आपको समझ में आ जाएगी, कंसोल कैसे यूज करना है, ये सब चीजों के ऊपर है, तो इसलिए थोड़ा इजी रखा है ये लैब वाली, ये वाली लैब, ठीक है। और ये मेनली मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए रखते हैं ये वाली लैब, तो आपको ऐसे मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। जैसे मैंने लैब कंप्लीट कर ली तो मेरा एनेबल हो चुका है, मैंने चेक माई प्रोग्रेस करा, कंप्लीट हो गया। 100 आउट 100 नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरा लैब कंप्लीट हो चुका है और ये 6 मिनट तक एटलीस्ट चलने देना है आपको, ठीक है। मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो मैं अभी एंड कर देता हूँ, मेरे पास पहले से मंथली सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। 6 मिनट के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लग जाएगा कि मंथली सब्सक्रिप्शन आ चुका है 9 क्रेडिट की जगह। और अगर नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको इसको एंड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए सिंपली, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपको सिंपली यहाँ रिफ्रेश इस पे जा करके मंथली सब्सक्रिप्शन क्लिक करना है और सभी खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर देना, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ सिंपली रिफ्रेश कर दो और यहाँ मेरा दिख जाएगा कि मंथली सब्सक्रिप्शन आ चुका है मेरे पास। पहले 9 क्रेडिट्स आएंगे, उसके बाद मंथली सब्सक्रिप्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये कंप्लीट ये ईमेल के थ्रू ऐसे आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा। और फिर मैंने जैसे बताया था ये अपने आप ही बंद हो जाती है, तो उसका रिजल्ट सिंपल था। रजिस्टर, हाँ, ओके। इसके रिगार्डिंग किसी और को कुछ डाउट है? आई होप कि सबने एटलीस्ट फर्स्ट लैब कर ली होगी, अपनी कोड रिडीम्स कर लिए होंगे सबने। फर्स्ट लैब भी नहीं की? जो मैंने अभी जो स्टेप्स बताए हैं वही आपको फॉलो करके आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। उसके बाद से आप बाद से सिंपली आप लैब कर बाकी के सकते हो। लैब्स कर पाओगे, बाकी के क्वेस्ट वगैरह कर पाओगे। ओके, सो जो फर्स्ट लैब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कोड्स रिडीम करो और उस लैब को एटलीस्ट कंप्लीट करो 30 नवंबर से पहले। एंड फिर हेलो, यस, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, तो एक बार वो बताओगे जो गूगल कंसोल पे जाते हैं उसका लॉगिन करा है, उसके बाद आगे क्या करा था, वो उसके वाला बाद स्टेप ज्यादा बता दो। दोबारा से, सो ये वाला स्टेप कह रहे हो ना आप? नहीं, यहाँ आगे लॉगिन कर इस पे गूगल कंसोल पे चले गए थे जब हम। तो मैंने एपीआई सर्विस एनेबल करी थी क्योंकि मुझे हाँ हाँ, इस टास्क में यही दिया है मेनली कि एपीआई सर्विस एनेबल करना है। तो तो ये डायलॉग फ्लो एपीआई सर्विस जो है मैंने सर्च में डाला, मेरे को सर्च में दिख गया, मैंने वहां से जाके क्लिक करा, एनेबल कर दिया वहां सिंपली, ठीक ठीक है। है। उसके बाद मैंने आकर के चेक माई प्रोग्रेस करा और ये टिक हो गया था क्योंकि मैंने एनेबल कर दिया, तो ये चेक माई प्रोग्रेस हाँ, ठीक दिखा देगा। बस इतना ओके। सिंपल सा काम है तो ये हमें पूरा लैब कंप्लीट करना है ना, ये जो हैंड्स ऑन हाँ, लैब होता हाँ है। जितने जी। भी टास्क है उसको कंप्लीट करके और अपने प्रोग्रेस को चेक करना है, फिर उसके बाद आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और ओके, एटलीस्ट 6 मिनट तक इस लैब को ओपन रहने दीजिएगा, उसके बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा। इस लैब के सारे करने हैं ना हमें, मतलब जो भी इसमें वो दे रखे हो। हाँ जी। हाँ, इस पाथ में आपको जितनी भी चीजें दे रखी हैं, जैसे ये थर्ड पाथ है, ठीक है। इस ये थर्ड पाथ पाथ में का अच्छा। ये पाथ्स में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो होम के बगल में पाथ्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक ओके, कर दिए, एनेबल ये दिख जाएगा आपको। और उस पाथ में थर्ड पाथ है, आपको फिर से दिखा देता मैंने हूँ। उसी पाथ में थर्ड पाथ है ये, गूगल क्लाउड इंजीनियर लर्निंग पाथ, ठीक है। इस पे क्लिक ठीक है। करना है सिंपली। और ये सारी जो इसमें चीजें सारी कंप्लीट करनी है आपको। ये सारे कोर्सेज हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और यहाँ पर हैंड्स ऑन लैब्स के ऊपर आपकी सारी चीजें यहाँ पे क्वेस्ट ये हमें रिव्यू। 14 दिसंबर तक हाँ, कंप्लीट करना है सब कुछ। 14th ऑफ दिसंबर है आपकी लास्ट डेडलाइन, उसके पहले आपको ये सारे पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, ओके। सो ओके, कीप दिस ऑन माइंड। बाकी और किसी का कोई डाउट इसके रिगार्डिंग, लैब्स और कोर्स के रिगार्डिंग? बिकॉज या 14th ऑफ दिसंबर इज लास्ट डेट।
और इसके रिगार्डिंग अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो या हमें भी मैसेज कर सकते हो। एंड अगर नेसेसरी हुआ तो हम डाउट सेशंस भी रख लेंगे अगर किसी को लैब में भी डाउट आता है तो किसी को डाउट है नहीं है? ओके फाइन, मुझे लगता है अब किसी को कोई डाउट नहीं है।